Okay, good morning to all of you, and hope I am audible and screen are visible, right? Okay, how are you? Hello. Hello, Anil, Ankit, Kunal, Lakshman, Nafiza, Ravi, Somajit, Raja, Priya. Okay, okay, thank you. Okay, in the last class we have discussed about the sand mold, right? This type of casting, sand mold casting, right? Today we are going to discuss about the some special type of casting, right? And what special type of casting may be? Anyone? Anyone want to say something? What do you mean by special casting? Okay, thank you. Look at the next slide. We're going to discuss about the special casting process, right? Okay, so already I have discussed about the different type of casting process. First one is expandable and another is first one is expandable casting or pattern and another is permanent, right? What do you mean by this? What do you mean by the expandable as well as permanent molding? Already I have discussed. सर एक्सपेंडेबल एक ही बार यूज होता है सर, परमानेंट मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। एक्सपेंडेबल पैटर्न क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद उसको क्या करते हैं, ब्रोक कर देते हैं उसको, ब्रोकन, दैट इज टू बी ब्रोकन, राइट? ठीक है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड ट्वाइस और more than that, but a permanent mold or permanent pattern, it will be used one or more than one times, right, to make the pattern, sorry, to make the casting, right? Am I right? यस Okay, wait, थोड़ा सा यार इश्यू आ रहा है। लाइट आप लोग का ही वो जा रहा है क्या? हाँ सर, हाँ कल तो सर, अभी तूफान just आया guess. था ना। नहीं जा रहा है सर उतना। लाइट यहाँ बहुत जा रहा है। यस सर, बहुत दिक्कत है झारखंड में सर। Okay, look at this. Already I have told you that there may be a two type of casting, that is first is expandable and another is permanent, right? Similarly, there may be a molding, right? Type of molding, that is first one is expandable molding and another is permanent molding, right? ये सब हमने डिस्कस कर चुका है फर्स्ट क्लासेस में, राइट? ठीक है, एक्सपेंडेबल कास्टिंग में क्या होता है, द कास्टिंग और द मोल्डिंग which will be used again and again for making the sand mold or making the casting, right? ठीक है, so that is known as expandable casting, but permanent molding is that molding which will used again and again to make the casting, right? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? What is the difference between expandable and permanent? Hope it is clear, right? Okay, so expandable casting is a casting method that uses temporary or single use mold, right? Already I have told you that uses the single or temporary mold, right? ठीक है, तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट मोल्डिंग, फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, सेल मोल्डिंग प्रोसेस, दैट इज द एक्सपेंडेबल मोल्डिंग प्रोसेस, राइट? इन विच we are going to make a what, we are going to make a mold having the cell thickness of 9 mm. Look at this here, right? सेल थिकनेस ऑफ 9 mm, राइट? ठीक है, यहाँ पे 9 mm का थिकनेस बनाते हैं सेल थिकनेस। हाउ द थिकनेस कैन बी मेक, look at this here, right? The cell molding is a casting process. This is the process, right? There are maybe a different type of process. Already we have discussed about the sand mold casting process, right? Similarly, cell molding is the another method to manufacture the manufacturing a product, right? This is also a type of casting here, right? तो सेल मोल्डिंग में बेसिकली क्या होता है, if there is a there is a process to make a cell, right? What is the cell molding process? Look at this here figure. We are going to just discuss our figure here, right?
ठीक है, तो ये लुक एट दिस फिगर, दिस इज व्हाट, दिस इज द सैंड विथ रेजिन बाइंडर, राइट, दिस इज द सैंड sand which is mixed with the resin binder, right, thermosetting resin, right, what is this, thermosetting resin is used to make the foundations of the sand particles, right, एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, राइट, इसको क्या बोलते हैं, एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है, राइट, ठीक है, that will be what, when it will be heated, this will be heated, they will form a solid what, solid wall, right, or solid cell, right, ठीक है, so look at this here, right, this is what, this is the heated pattern, this is the pattern here, right, we have to make a product like this, right, this is the product here, look at this very carefully, right, समझने की कोशिश करोगे आप लोग, ठीक है, suppose this is a product which is to be made by using the cell mold casting, right, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको दो भाग में हमने क्या किया, डिवाइड किया, राइट, first half क्या है, first half, this is the first half, right, first half, or another will be there, right, similarly there will be another part, similarly there will be a another part like this, ठीक है, like this, ठीक है, तो ये क्या कंप्लीट पार्ट हमें मिल जाएगा, दिस विल बी द कंप्लीट पार्ट, राइट, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये प्रोसेस है, इसमें हम क्या करेंगे कि क्लियर, राइट, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, हीटेड पैटर्न, राइट, हीटेड पैटर्न इज एयर, राइट, ठीक है, पैटर्न इज हीटेड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सैंड मिक्स्ड विद द thermosetting resins, right, now we are going to invert this, right, we are going to invert this, right, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, उल्टा कर देंगे, तो ये जितना ये जो thermosetting है, sand particles mixed with the thermosetting will fall on the heated pattern, clear to everyone, this fall on the heated pattern, am I right here, ये कहाँ गिरेगा, ये कहाँ गिरेगा, सैंड पार्टिकल हीटेड पैटर्न पे, राइट, ठीक है, अब इसके कांटेक्ट में जब आएगा, ये क्या है, आपका पैटर्न है, पैटर्न इज हीटेड इन द फॉर्म ऑफ, दे हैव द हायर टेम्परेचर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, राइट, तो ये हीटेड फॉर्म में है, राइट, तो ये जो आपका जो थर्मोसेटिंग, जो आपका सैंड पार्टिकल्स विथ बाइंडर जो है आपके इसके कांटेक्ट में आएगा, तो दे विल मेक ए थिन लेयर, ये क्या करेगा, यहाँ से मेल्ट होना शुरू कर देगा, एक लेयर बना देगा लाइक दिस, राइट, am I audible, am I audible to all of you, यस सर, ठीक है, ओके, ठीक है, उसके बाद जो ये लूज पार्टिकल रहेगा, उसको फिर से हम इसको क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशंस में लेके आ जाएंगे, राइट, इट विल बी इन्वर्टेड इनटू द इनिशियल पोजीशंस, राइट, तो दिस विल बी द इनिशियल पोजीशंस, ये जो इनिशियल पोजीशंस था, ये इनिशियल पोजीशंस था, उससे अकॉर्डिंग हमने फिर से इसको पलट दिया, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज द पैटर्न था, ये पैटर्न, राइट, तो हीटेड पैटर्न था, नाउ ड्यू टू द हीट, राइट, ठीक है, there will be a formations of cell, right, solid cell, right, this is what, this is the solid cell, right, ठीक है, तो इसका जो थिकनेस होगा, that will be what, that will depends upon the contact time, right, ये किस पर डिपेंड करता है, कितना देर हम उसको कांटेक्ट में रखें, किस चीज को, हीटेड पैटर्न एज वेल एज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड रेजिन, राइट, कितना देर तक हम उसको कांटेक्ट में रखें, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या मिल गया, सेल हमें मिल गया, राइट, इसका थिकनेस किस पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट टाइम पे, ठीक है, एंड दिस टाइम इज नोन एज ड्यूअल टाइम, DWELL, ड्यूअल टाइम, राइट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पैटर्न को क्या करते हैं, इस पैटर्न को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, या आप फिर से अगेन यही प्रोसेस को रिपीट करते हैं, तो फिर से इसी तरीके का आप एक प्रोसेस बनाते हैं, राइट, ठीक है, इसी तरीका का आप क्या करते हैं, इसी तरीका का आप सेल बनाते हैं, और दोनों सेल को क्या करेंगे, असेंबल कर देंगे, सिमिलरली देखो सेल 1 हो गया एंड दिस इज सेल 2, दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2, इसको क्या करेंगे, असेंबल कर लेंगे, ठीक है, और असेंबल जो आपका प्रोडक्ट है, और असेंबल जो आपका क्या है, आपका मोल्डिंग है, और मोल्ड कैविटी उसको कहाँ रखेंगे, हम एक फ्लास्क के अंदर रखेंगे, फ्लास्क इज सराउंडेड विद द सैंड मोल्ड पार्टिकल, राइट, दिस इज द सैंड पार्टिकल, राइट, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या डाल देंगे, लिक्विड मेटल को क्या करेंगे, पोर कर देंगे, राइट, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट हियर, राइट, समझ में आया, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, एम आई क्लियर, am I clear to all of you, यस सर,
ओके ठीक है, तो इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखा है देखते हैं। एक्सपेंडेबल, राइट। तो एक्सपेंडेबल की हमने बात किया था, तो देखो वही चीज मैंने जो बताया वही चीज हमने लिख रखा है यहाँ। ए मेटल पैटर्न इज हीटेड एंड प्लेस्ड ओवर अ बॉक्स कंटेनिंग सैंड मिक्स्ड विद द थर्मोसेटिंग रेजिन्स, राइट। A dump box is inverted so that the sand resin mixture falls on the hot pattern। क्या करते हैं, उस बॉक्स जो डंप बॉक्स है जहां पे क्या रखा हुआ है, जहां पे सैंड मिक्सचर्स एज वेल एज थर्मोसेटिंग, राइट, सैंड एंड थर्मोसेटिंग का मिक्सचर्स रखा हुआ, वो क्या करते हैं उसको इन्वर्ट कर देते हैं, राइट, उसको इन्वर्टेड पोजिशन में लाते हैं। तो हॉट पैटर्न के कारण उस पे एक क्या होता है, एक लेयर फॉर्मेशन होता है, राइट, यूजिंग ए लेयर ऑफ द मिक्सचर टू पार्शियली क्योर ऑन द पैटर्न सरफेस टू फॉर्म ए हार्ड सेल, राइट। ठीक है, तो वो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, उसमें एक सेल का क्रिएशन होता है, सेल क्रिएट हो जाता है, राइट। बॉक्स इज पोजिशन टू द प्रीवियस स्टेज, जैसे ओरिजिनल पोजिशन फिर से वापस हम क्या करते हैं, बॉक्स को ले आते हैं। तो लूज सैंड जो हुआ, जो सैंड क्या हुआ, जो सैंड आपका जो सैंड जो है सेल में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ जिसका, ठीक है, सेल फॉर्मेशन में जिसका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, दैट विल इन द फॉर्म ऑफ लूज, राइट। ठीक है, तो वो क्या होता है, इन्वर्टेड पोजीशंस में हम लाएंगे ओरिजिनल पोजीशंस में, तो वो क्या करता है, फिर से वापस अपना पोजीशंस पे आ जाता है, राइट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर से इसको ओवन को हीट करते हैं समटाइम्स, राइट, टू फॉर्म दिस एक्यूरेट। ठीक है, ये जो आपका सेल जो बना उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और थोड़ा सेवरल टाइम पर क्या करते हैं, इसको फर्नेस में और ओवन में क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। उसके बाद सेल को क्या करते हैं, फिर से रिमूव करते हैं, राइट, रिमूव फ्रॉम द पैटर्न एंड वी आर गोइंग टू मेक द टू हाफ शेयर। ठीक है, टू कंप्लीट दिस प्रोडक्ट है, राइट। ठीक है, तो इसको दो हाफ में हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, राइट। ठीक है, तो स्प्लिट पैटर्न इसको बोलते हैं, स्प्लिट पैटर्न भी बोलते हैं इसको, राइट। ठीक है, तो दो हाफ में पैटर्न को हमने तैयार किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको असेंबल करते हैं। उसके बाद जो असेंबली मेरे पास बना, वहां पे क्या क्रिएट हुआ, देयर विल बी ए क्रिएशन ऑफ hollow cavity, right, in which we are going to pour the metal, liquid metal, right. After solidification you will get the product here, right. ठीक है, look at the video here, how the process is executed, you can see at the video here, right. This is what, this is the metallic pattern, right. ये क्या है, मेटालिक पैटर्न है, ठीक है, और ये क्या है मेरे Yes, पास, सैंड एंड रेजिन का मिक्सचर है, राइट। ध्यान से देखिएगा पिक्चर। क्या बॉक्स क्या किया हमने, पैटर्न को उसमें डाल के सर पैक कर दिया फिर ओरिजिनल पोजीशन में। देखो ये क्या बन गया मेरे पास, सेल बन गया, फर्स्ट हाफ बना, फिर से सेकेंड हाफ की हमने बात किया, राइट। ठीक है, तो फिर से देखिएगा बनाया, रिपीटिंग द प्रोसेस, राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू असेंबल, राइट। ये दो दो पार्ट में बना आपका सेल, उसको क्या करेंगे, असेंबल कर देंगे, राइट। एंड इफ यू वांट टू मेक ए hollow cavity, तो you have to put the core। ठीक है, होलो शेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। देखो अब क्या करते हैं, मेटल को कोडिंग किया हमने, ओके, this is the product here, right. This is the product, how the product can be manufactured by using the sand, this type of process I am telling, cell molding process, right. Okay, hope it is clear to all of you, clear है। यस सर, वीडियो देख के और अच्छा क्लियर होता है सर। हाँ ठीक है, चेक कर लो एक और वीडियो। किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड? फर्स्ट हाफ बनाया, उसके बाद मैंने सेकंड हाफ बनाया, राइट। दो पार्ट में हम क्या बना दिए,
सेल बना लिया, उसके बाद सेल को हम क्या किया, हम असेंबल कर दिया, ठीक है। और यदि मान लो आपको हॉलो कैविटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि सैंड मोल्ड कास्टिंग में करता था हमने, है ना। So this is your final product, right? Okay. Okay. Now, what is the advantage of the cell molding process? Right? You may get their surface finish, better surface finish, right? The surface of the cell mold is smoother than the conventional green sand mold casting. जो हम प्रोडक्ट बनाते थे ग्रीन सैंड मोल्ड कास्टिंग के थ्रू, राइट, जो हमने पढ़ा था प्रीवियसली, राइट, ठीक है। तो उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनाते थे, दैट प्रोडक्ट इज समवॉट not a smoother or rough product, right? But in case of cell molding process, you will get the smoother product, right, than the conventional one, right? Okay. And also there may be a minimizations of the machining, right? ठीक है, तो हम मशीनिंग अलाउंसेस को क्या करते हैं, हम मिनिमाइज कर देते हैं, राइट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मशीनिंग अलाउंसेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू अचीव द सरफेस फिनिश, राइट, ठीक है। In case of cell molding, we are going to minimize or eliminate the machining allowances, right? Clear to everyone? Here surface finish can be achieved in the order of 2.5 micrometer, right? And tolerance can be achieved, जो आपका dimensional tolerance है, that can be achieved plus minus 0.25 mm can be reached, right? ठीक है, for a small to medium size part, ठीक है। Machining operations are reduced because of, already I have told you, machining operations can be reduced because of the good surface finish. If there will be a rough surface, you will have to go for the machining operations to achieve the better surface finish, right? ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, हम already we are getting the better surface, right? ठीक है, so we can minimize or reduce the machining operations. Am I clear? Am I clear? Okay. Yes, sir. Yeah. And that can be mechanized for the mass productions. Mass productions में मतलब क्या होता है, more than कम प्रोडक्ट, ठीक है। मास प्रोडक्शन के लिए आपका ये जो प्रोसेस है, दैट विल बी इकोनॉमिकल टू, ठीक है। ये प्रोसेस मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्रोसेस में हमें क्या मिलेगा, इकोनॉमिकल मिलेगा, ठीक है। कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्ट हमें बनाया जा सकता है। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस? एक्सपेंसिव मेटल पैटर्न इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मेटल पैटर्न जो बना रहे हैं, दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक परमानेंट हमको क्या बनाना पड़ेगा, आपका पैटर्न बनाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। एंड दैट पैटर्न विल बी वेरी एक्सपेंसिव, राइट, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। देयर इज सम एप्लीकेशंस, राइट, एप्लीकेशंस ऑफ सेल मोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे इसके थ्रू क्या क्या बना सकते हैं, गियर बना सकते हैं, वॉल बॉडी बना सकते हैं, बुशिंग, etc. This can be manufactured by the cell molding process, right? ठीक है। Another is what? Another is expandable polystyrene process, right? ठीक है। Another process that is the special casting process में ही आता है। दूसरा में हम क्या देखते हैं, that is the expanded polystyrene process, right? ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि एक पोलिस्टीरीन फॉर्म का क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट ए पोलिस्टीरीन फॉर्म पैटर्न, राइट, ठीक है। पोलिस्टीरीन फॉर्म का ये क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हेन द मोल्टन मेटल इज पोर्ड, यदि मेटल के कांटेक्ट में आता है तो दे विल गेट वेपोराइज्ड। क्लियर टू एवरीवन? दे विल गेट हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है। तो मान लो कि पॉलिस्टीरीन फॉर्म कहने का मतलब, मान लो कि थर्मोकोल है, थर्मोकोल को यदि मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, राइट, वो पिघल जाएगा। हेलो, इवापोरेट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो दिस इज द पॉलिस्टीरीन फॉर्म पैटर्न, ठीक है। तो आप किसी भी कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है तो आप क्या करोगे, पॉलिस्टीरीन फॉर्म का पैटर्न हमने बना लिया, राइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं,
कि इस पे एक स्प्रेइंग करते हैं, किस चीज का स्प्रेइंग, रिफैक्ट्री कंपाउंड। रिफैक्ट्री कंपाउंड हमने बताया था क्या होता है, रिफैक्ट्री कंपाउंड इज द कंपाउंड having ability to sustain the high temperature, right? High temperature resistant material को क्या बोलते हैं, राइट। ठीक है, हो सकता है ये क्या हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, सीमेंट हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, राइट। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे एक रिफैक्ट्री मटेरियल हम क्या लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, राइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ हमने क्या किया, स्प्रे कर दिया, राइट। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हमने किया, स्प्रेइंग कर दिया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रे कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बसंत कुमार इतना लेट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज द पोर्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज द pouring cup and this is the sprue here, right? This is the sprue and this is pouring cup। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को पोर करते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमने किस चीज का बनाया, पॉलीस्टीरीन फॉर्म का बनाया। उसके बाद हम इस पे क्या स्प्रेइंग कर रहे हैं, स्प्रेइंग रिफैक्ट्री कंपाउंड, राइट। ठीक है, तो ये एक लेयर बना लेगा, ये आपका पॉलीस्टीरीन फॉर्म जो पैटर्न है उसके अराउंड एक लेयर बना लेगा, सॉलिड लेयर बना लेगा, राइट। ठीक है, उसके बाद इस पूरा जो आपने जो बनाया इस सिस्टम, उसको हमने कहाँ रख दिया, वी आर गोइंग टू कीप इनसाइड ए मोल्ड बॉक्स। ठीक है, एंड वी आर पैकिंग द सैंड अराउंड द पैटर्न हियर, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम चारों साइड से सैंड को पैक कर देते हैं, राइट नाउ please tell me what will happen here whenever we are going to put the molten metal here, what will happen, the polystyrene form will get vaporized। ठीक है, ये polystyrene form क्या हो जाएगा, vaporized हो जाएगा, राइट। लिक्विड मेटल क्या करेगा, लिक्विड मेटल will replace the vaporized form pattern, यहाँ पे क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन मेटल, यहाँ लिक्विड मेटल आपका यहाँ पे पोजीशंस ले लेगा, राइट। ठीक है, और इसका जो वाल बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है, रिफैक्ट्री कंपाउंड का बना हुआ है, राइट। ठीक है, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन व्हाट विल यू गेट, you will get the desired product here, clear to everyone, you will get the desired product here, clear? Yes, sir. ओके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करोगे, रिफैक्ट्री मटेरियल जो आपने डाला उसका सरफेस, आपका सरफेस टेक्सचर है उसके कारण जो आएगा सरफेस टेक्सचर, सरफेस जो क्वालिटी आएगा दैट विल बी इनहेंस्ड मोर देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस। कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस जो हमने सैंड मोल्ड की बात किया था, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लोस्ट फॉर्म, इट इज आल्सो कॉल्ड लोस्ट फॉर्म प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म क्या हो गया, लोस्ट हो गया। फॉर्म जो आपने क्या बनाया था, आपने पैटर्न जो बनाया था किस चीज का, फॉर्म का, दैट हैज बीन लॉस्ट हियर ड्यू टू द वेपोराइजेशन, वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉस्ट फॉर्म प्रोसेस और लॉस्ट पैटर्न प्रोसेस और इवोपोरेटिव फॉर्म प्रोसेस, राइट। ठीक है, द फॉर्म पैटर्न्स इंक्लूड्स राइजर स्प्रू गेटिंग सिस्टम, जो है जो सब किस चीज का बनाते हैं हम, सब चीज बनाते हैं हम फॉर्म का। तो सब चीज क्या बन गया, सब चीज वेपोराइज हो गया, राइट। ठीक है, अब जो सॉलिडिफिकेशन है उसके बाद आप इस चीज को कट कर लोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, कोड स्क्रू को हटा दोगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट हियर। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। ये आप नाम बहुत बार सुने होंगे, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो हमने क्या किया था, इस कंडीशंस में हमने क्या लिया था, पॉलीस्टीरीन फॉर्म का हमने क्या बनाया था, पैटर्न बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैक्स का पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, सिमिलर चीज है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर गोइंग टू मेक ए पैटर्न ऑफ वैक्स। वैक्स मतलब क्या होता है, हेलो, व्हाट इज द वैक्स हियर? मोम देखे हो, मोमबत्ती जो जलाते हैं, हेलो हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने क्या किया है कि यहाँ पे पैटर्न विल बी मेड अप ऑफ वैक्स, राइट। नाउ दिस पैटर्न इज कोटेड विद द रिफ्रैक्टिव मटेरियल। फिर से क्या करते हैं, सिमिलर प्रोसेस हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, राइट। ठीक है, तो वैक्स जो होता है वो क्या किस लिए यूज होता है, पैटर्न बनाने के लिए, राइट। पैटर्न इज मेड अप ऑफ वैक्स
and now this pattern is coated with the refractory material to make the mold surface, right? After which wax is melted away. उसके बाद हम क्या करते हैं, इस wax को क्या करते हैं, मोल्ड करके उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, राइट? ठीक है, तो wax is melted away while pouring the molten metal. And investment means what? Why investment casting is named as investment casting, right? Because investment means to cover completely, which is to be covered here. The wax pattern is to be covered by the refractory material, right? Okay, that is also known as coating of the refractory material around the wax pattern. किस चीज का coating करता है wax pattern को? refractory material का coating करते हैं, right? Okay, ठीक है. The most commonly used material here, यहाँ जो हम किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस मेटल से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, the manufacturing material may be there aluminum alloy, bronze, magnesium alloy, cast iron, stainless steel, etc. Right? ठीक है. What will achieve? What is the achievement here? It will achieve here the precision casting process, right? This is also known as precision casting. Whenever you will ask what is the precision casting, it is nothing. It is same the investment casting. Investment casting is also called precision casting because you will get the better surface finish here, right? Clear? Okay. Using this casting process, high accuracy with intricate or complex shape can be achieved here, right? What is the applications here? Applications are complex geometry such as turbine blades. Turbine blades can be manufactured by using the investment casting or precision casting process. Machine parts that can be manufactured, like component of turbine engine, jewelry or dental fixture that also can be manufactured by this process, that is the investment casting process. Am I right here? Is it clear? Yes, sir. Okay, तो फर्स्ट what will you do? फर्स्ट क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या करता है, दिस इज द पैटर्न, राइट? पैटर्न इज मेड अप ऑफ वैक्स, राइट? वैक्स का एक पैटर्न हमने बनाया, राइट? ठीक है. मोर देन दैट, आपको एक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, ये जो आपका क्या है, दिस इज द स्क्रू हियर, दिस इज द स्क्रू एंड दिस इज व्हाट, अपर पोर्शन इज कप, ठीक है, पोरिंग कप एंड दिस इज द स्क्रू हियर, राइट? ठीक है, तो स्क्रू से हम क्या किए, स्क्रू से हम मल्टीपल वैक्स पैटर्न को हमने अटैच कर दिया, ठीक है. ट्री लाइक स्ट्रक्चर वी विल गेट हियर, राइट? यहाँ पे क्या है, पेड़ की तरह स्ट्रक्चर हमने बना दिया. यहाँ से आप क्या करोगे, मोल्टन मेटल डालोगे, तो ये क्या है आपका स्क्रू के थ्रू ये रनर में चला जाएगा. ये फर्स्ट आपका फर्स्ट पैटर्न में चला गया, सेकंड पैटर्न में चला गया, थर्ड पैटर्न में चला गया एंड फोर्थ पैटर्न मतलब मोल्ड कैविटी वहां पे जो बनने जा रहा है, राइट? ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट हमने क्रिएट किया, किस चीज का, वैक्स का. सब चीज हमने बनाया, वैक्स का स्क्रू बनाया, वैक्स का पोरिंग कप बनाया, वैक्स का पैटर्न बनाया, राइट? ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, एक मिनट. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्लरी लिया है, किस चीज का, रिफ्रैक्टिव मटेरियल का स्लरी लिया है, उसको उसमें हमने ये पूरा सिस्टम को डीप कर दिया, ठीक है, टू क्रिएट ए सॉलिडिफाइड लेयर ओवर देयर, राइट? ठीक है, इस पे क्या बनाएगा, एक लेयर क्रिएट कर देगा, एक जो आपका सील्ड है और या जो है क्या, उसको एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर देगा, राइट? उसके बाद जो क्या करते हैं, उसको फिर से क्या करते हैं, हिट करते हैं, राइट? उसको हिट करने के बाद ये जो आपका जो लेयर बना है, किस चीज का, रिफ्रैक्टिव मटेरियल का एक कैविटी बन गया, राइट? उसमें कैविटी में क्या करेगा, ये मोम जो आपका वैक्स जो डाले हो, दैट विल मेल्टेड आउट हियर, यहाँ पे क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा. इसको उसके बाद क्या कर देंगे, हम इन्वर्ट कर देंगे, तो देखो आप हिटिंग करोगे तो आप क्या करोगे, ये सब मेल्ट हो जाएगा, तो वैक्स जो है टोटल कंप्लीटली ये क्या बाहर आ जाएगा, राइट? वी विल मेक इट हियर ब्लैंक, राइट? ठीक है, तो वी विल गेट द ब्लैंक हियर, व्हाट, वी विल गेट द cavity like structure here, right? Now the next process is we are going to pour the molten metal here, right? They will completely fill the cavity here, right? After the solidification you will get the product like this, right? You will get the product similar to the pattern. Clear to everyone? Clear to everyone? ये आपका लिखा हुआ प्रोसेस समझ में आया बात? वीडियो देखो.
this is the step of investment casting, right? First of all, you have to make the pattern, right? This type of pattern is made here, wax pattern, right? पैटर्न असेंबली, यहाँ पे हमने क्या किया, पैटर्न का असेंबली किया। ये एक मिनट, एक मिनट प्लीज वेट। Look at the video. समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे। Here what first step is tooling and pattern making, right? How the pattern will be made here, right? Wax pattern is to be created, right? After that, all pattern is made into a tree-like structure to get more than one pattern, more than one product, right? Now dipping and coating. इस टाइप का मटेरियल से कोटिंग करते हैं इसको। एनीवन? आप लोग सुन रहे हो नहीं? refractory material. वो फैक्ट्री मटेरियल राइट नाउ। अब क्या करते हैं उसको? Molten wax के बाद हाँ, उसको इन्वर्टेड करके हम उसको डिपिंग आउट करते हैं, ठीक है? उसके बाद कास्टिंग करते हैं, राइट? होलो कैविटी में मोल्टेन मेटल को हमने डाल दिया। नॉकआउट मतलब बाहर निकलना, राइट? प्रोडक्ट को सेपरेट कर दिया हमने, राइट? एक बार में हमें कितना प्रोडक्ट मिल गया? मोर देन वन, राइट? दिस इज द बैच प्रोडक्शन सिस्टम, राइट? एक बार में हम एक बैच में मोर देन वन बनाया हमने प्रोडक्ट, राइट? दिस इज द स्टेप, राइट? अब क्या करते हैं? टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन करते हैं whether the quality has been achieved as the required, right, or not. Okay, thank you for listening up to here. We are going to discuss, we will go more discussions, we will make more discussions about the special casting process in the next class. Up to here, hope it is clear, right? अब आज में क्या क्या सीखा हमने? तीन टाइप का पैटर्न हमने सीखा, तीन टाइप का कास्टिंग प्रोसेस सीखा। फर्स्ट वन इज व्हाट? पहला क्या था? पहला क्या था?
ये हम बात करें एक्सपेंडेबल मोल्डिंग प्रोसेस की, राइट। ठीक है, तो पहला क्या था, सेल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस, राइट। व्हाट इज सेल मोल्ड कास्टिंग, समझ में आया स्टेप, राइट। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं इससे रिलेटेड कि आप बताओ, इसका स्टेप बताओ, फिगर ड्रॉ करो इसका, ठीक है। फर्स्ट वन सेल मोल्डिंग, राइट। अनदर इज expanded, another is expanded polystyrene process, right, and third one is investment casting। तीनों का स्टेप समझ में आया, क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। रवि, okay, thank you, we are going to close the sessions for the today, we will discuss more thing on tomorrow sessions, right? Thank you. Thank you, sir.